Good morning. How are you, students? Teacher Amara is here to teach you your first English lesson from Oxford Progressive English Class 4. Today we are going to learn new words from our first unit, the sea. In this story, we come to know that there were two friends, Dave and Jack. They were fond of visiting seaside. One day they were standing on a seaside and they were looking in the sea through an echo screen. When they were looking, they saw that there was a sunken ship at the bottom of the sea. उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बैरी जहाज़ डूबा हुआ था. They wanted to see in it. They wanted to examine that what was in it. And so Jack decided to dive into the sea and to watch the things in the ship from nearby. So Jack put on a diving suit. The diving suit was attached with oxygen cylinder. So he started moving towards the ship. And when he got closer to the ship, he entered into the ship and he saw that there was a box full of gold and jewels and diamond. He was very amazed to see it, and when he was examining different things in the ship, an octopus grabbed his neck. So it was very difficult to release his neck, and at last he was successful to release himself and to come back to the surface of the sea. So students, you can also see the book here, and we are going to learn difficult words from this book, unit number 1, the sea. So come towards the difficult words from the lesson. First word is seabed. First word is seabed. सीबेड का मतलब होता है बॉटम ऑफ द सी, समुंदर का फर्श या समुंदर की निचली सतह. फर्स्ट वर्ड इज सीबेड, समुंदर का फर्श या समुंदर की निचली सतह. द सेकंड वन इज सनकन. द सेकंड वर्ड इज सनकन. इसका मतलब है डूब गया, ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड, डूब गया. द नेक्स्ट वर्ड इज डाइव. नेक्स्ट वर्ड इज डाइव. डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, अ प्लंज इनटू वाटर, अ प्लंज इनटू वाटर, गोता लगाना. नेक्स्ट वन इज केबन. नेक्स्ट वन इज केबन. केबन का मतलब होता है रूम, एक छोटा सा जो कमरा होता है ना, जैसे ऑफिसेज में बने हुए होते हैं केबन्स वर्कर्स के. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वंडर. नेक्स्ट वन इज़ वंडर. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में रखिएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लेसन के रिलेशन के साथ या रिलेटेड टू लेसन कुछ और मीनिंग बन रहे होते हैं. वो एज अ वर्ब कभी यूज़ हो रहे होते हैं, कभी एज अ नाउन यूज़ हो रहे होते हैं. वैसे तो वंडर का मतलब होता है ना अमेजमेंट, ठीक है, हैरानगी. लेकिन यहाँ पे जो है वो इसका मतलब है थिंक और गैदर, सोचना या अंदाज़ा लगाना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज जाइंट. नेक्स्ट वर्ड इज जाइंट. जाइंट का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा. जाइंट मीन ह्यूज, बड़ा. द नेक्स्ट वर्ड इज चैप. द नेक्स्ट वर्ड इज चैप. चैप मीन बॉय, लड़का. चैप मीन बॉय, लड़का. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सेल. नेक्स्ट वर्ड इज सेल और सेलिंग, मूवमेंट ऑफ अ शिप और सी. ठीक है. समुंदर में जब किसी बैरी जहाज़ के बादबान खोल दिए जाते हैं और वो मूव करना स्टार्ट करता है तो इसको सेलिंग कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हाइड. हाइड. हाइड मीन टू कवर, छुपाना. टू कवर, छुपाना. नेक्स्ट वन इज क्रीचर. नेक्स्ट वन इज क्रीचर. क्रीचर मीन अ लिविंग थिंग, मखलूक. ठीक है. किसी भी जिंदा मखलूक को क्रीचर कहते हैं.
Okay, students, you have learned the difficult words. I hope you are able to announce or pronounce the words properly, and you will be able to read the lesson later on. But now we have to do our classwork. You can see the page pattern on the screen. Friday, 17th June 2020, at the right corner, classwork, unit number 1, pages 2 to 7, and the lesson is the sea. So come towards the words meaning. Sunken, drowned, डूब गया. Seabed, bottom of the sea, समुंदर की निचली सतह. Dive, a plunge into water, गोता लगाना. Wonder, think, amazement, सोचना. अब think जो है ना, ये इसका लेसन से रिलेटेड मीनिंग है, लेकिन वैसे जो इसका मीनिंग है वो है अमेजमेंट या हैरत. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ जाइंट, लार्ज, बड़ा. चैप, बॉय, लड़का. सेलिंग, मूवमेंट ऑफ अ शिप इन द सी. ठीक है. बादबान खोलना. केबन, रूम, कमरा. हाइड, टू कवर, छुपाना. क्रीचर, अ लिविंग थिंग, मखलूक. So students, you have to copy the words meaning and mani in your notebooks. अच्छा, you will have to draw 3 columns. आप 3 columns draw करेंगे words meaning और मानी का. आप words जो है वो black pointer यूज़ करते हुए लिखेंगे और meaning और मानी blue pointer से लिखेंगे. दोनों साइड पे, इंग्लिश साइड पे भी और उर्दू मानी की साइड पे भी नंबरिंग मस्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेंटेंसेस. अच्छा बेटे, आप ने करना ये है कि अभी फ़िलहाल तो मैं आपको क्लास वर्क में सेंटेंसेस जो है वो करवा रही हूँ, लेकिन आपने घर में रफ़ कॉपीज़ पे इनके न्यू सेंटेंसेस बनाने की ट्राई भी जो है वो करनी है. ठीक है, ताकि आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसमें कमी ना हो. ठीक है. सो आपको पता है कि आपने सेंटेंसेस के लिए न्यू पेज प्रिपेयर करना है और उस पर आप इसी तरह प्रॉपरली डे एंड डेट मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर, पेजेस और लेसन का नेम लिखेंगे. ठीक है. मेक सेंटेंसेस. योर क्वेश्चन इज़ मेक सेंटेंसेस. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड, फिर आप हेडिंग देंगे वर्ड सेंटेंसेस की, कॉलम ड्रॉ करेंगे वर्ड्स और सेंटेंसेस का. फर्स्ट वर्ड इज़ seabed. I can make 3 sentences or 2 sentences for you and 1 sentence is on your screen. It's up to you कि आपने कौन सा सेंटेंस जो है वो अपने क्लास वर्क में यूज़ करना है. फर्स्ट वर्ड इज़ seabed. Seabed. Okay, the first one is Jack was eager to see the ship lying on the seabed. Jack was eager to see the ship lying on the seabed. Dave, and the second sentence we can make is Dave and Jack were able to see through the seabed by an echo screen. Jack and Dave were able to see through the seabed by an echo screen. And the third one on your screen is seabed is a wonderful place. ठीक है. Now come towards the second word. सेकेंड वर्ड इज़ डाइव. आपको पता है कि पानी में गोता लगाने को, पानी के अंदर जाने को और तैरने को जो है वो डाइविंग कहते हैं. वैसे तो जो सरफेस पे डाइविंग स्विमिंग होती है, जो तैरना होता है वो स्विमिंग होती है, लेकिन पानी के अंदर जाना, जिसे आप उर्दू में जो है वो गोता लगाना कहते हैं, वो ये डाइविंग होती है. ठीक है. तो आप इसका फर्स्ट सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं. जैक वांटेड टू डाइव इन द सी. जैक समुंदर में गोता लगाना चाहता था. और दूसरा ये हो सकता है कि आई एम फंड ऑफ डाइविंग. मैं डाइविंग का या गोते लगाने का या गोताखोरी का शौकीन हूँ.
और थर्ड ये हो सकता है जो आपकी स्क्रीन पे है, आई लाइक टू डाइव, मुझे गोता लगाना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ केबिन। नेक्स्ट वन इज़ केबिन, कमरा। ठीक है, तो द फर्स्ट सेंटेंस वी कैन मेक इज़ माई टीचर इंटर्ड इन माई केबिन। मेरी टीचर मेरे उसमें कमरे में, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम एज अ केबिन नहीं यूज़ हो रहा। ठीक है, वैसे कोई केबिन आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं माई टीचर इंटर्ड इन द केबिन। ठीक है, और सेकंड ये कर सकते हैं कि ही वॉज लुकिंग वेरी बिजी ड्यूरिंग वर्किंग इन हिज केबिन। वो अपने केबिन में काम करते हुए बहुत बिजी नज़र आ रहा था। और जो अगला सेंटेंस है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आई एम सिटिंग इन अ केबिन, मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ। वंडर, वंडर का आपको पता है कि मीनिंग अमेजमेंट होता है। दूसरा लेसन से रिलेटेड इसका मीनिंग जो है वो सोचना या अंदाज़ा लगाना है। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं हम, द जैक वॉन्डर्ड व्हाट माइट बी इन द बॉक्स। जैक ने अंदाज़ा लगाया कि उस संदूक के अंदर क्या हो सकता था। सेकंड सेंटेंस इज़ आई वंडर वेयर इज़ माई बुक। मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरी किताब कहाँ है। ठीक है, माई मदर वंडर्स हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, मेरी अम्मी ये अंदाज़ा लगा रही हैं या लगाती हैं कि गिलास किसने तोड़ा। नेक्स्ट वन इज़ जाइंट। जाइंट मीन ह्यूज, बड़ा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आई सॉ अ जाइंट साइज रॉक, मैंने एक बड़े साइज़ की चट्टान देखी। आप ये भी कर सकते हैं कि आई एम अफ्रेड ऑफ जाइंट मॉन्स्टर्स, मुझे बड़े साइज़ की जो बलाएँ हैं उनसे डर लगता है। और एक ये है आपकी स्क्रीन पे कि आई सॉ अ जाइंट एनिमल, मैंने एक बड़ा जानवर देखा। नेक्स्ट वर्ड इज़ चैप। नेक्स्ट वर्ड इज़ चैप। चैप का मतलब होता है बॉय। एक ये कर सकते हैं कि ही इज़ द चैप हु पुश्ड मी, ये वो लड़का है जिसने मुझे धक्का दिया। ठीक है, एक आप ये कर सकते हैं दैट इज़ द चैप यू वांट टू मीट, वो लड़का है जिसको आप मिलना चाहते हैं। और आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस आ रहा है अली इज़ अ ब्रेव चैप, अली एक बहादुर लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हाइड। नेक्स्ट वन इज़ हाइड, छुपाना। माई ब्रदर हाइड्स द ब्रोकन टॉयज़, मेरा भाई जो है वो टूटे हुए खिलौने छुपाता है। एक ये हो सकता है ही इज़ ट्राइंग टू हाइड हिज टेस्ट, वो अपना टेस्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ऑन द स्क्रीन यू कैन सी आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, मुझे छुपन छुपाई खेलना पसंद है। ठीक है, हाइड एंड सीक इज़ अ गेम। ठीक है, जिसमें आप छुप जाते हैं और दूसरे बच्चे आपको ढूंढते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्रीचर। क्रीचर, क्रीचर का मतलब होता है मखलूक, एनी लिविंग थिंग के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो प्लांट्स आर लिविंग क्रीचर, प्लांट्स जो हैं वो ज़िंदा मखलूक का, आपको पता है पौधे सांस लेते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कर सकते हैं कि आई सॉ अ वंडरफुल क्रीचर, मैंने एक हैरत अंगेज़ मखलूक देखी। एंड ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इट इज़ कैमल इज़ अ वंडरफुल क्रीचर, ऊँट जो है वो एक हैरत अंगेज़ मखलूक है। ठीक है, these are your sentences, you have to copy them neatly, properly, in joining, or no cutting should be here, no erasing should be here, remover नहीं यूज़ करना आपने, और properly जो अपना काम है वो करना है। and your home task is
टू लर्न योर क्लास वर्क प्रॉपरली। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि एक दफ़ा लेसन को रीड करना है, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मॉडल रीडिंग मैं आपको एक दफ़ा फिर करवा दूँगी और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, गुड बाय।